चलो आगे 18, 19, 20. ओके, देखो टाइम जाया हो गया। ये जो जूम है ना कभी कभी गड़बड़ करता है। अभी आवाज ठीक आ रही है? हाँ हाँ सर। ओके, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। ओके, तो मैंने ये थ्योरम लिखा था, कैरेक्टराइजेशन ऑफ, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, चलो जल्दी से लिख देता हूँ। कैरेक्टराइजेशन ऑफ continuous linear transformations. ओके, थ्योरम ये है, let x and y be normal linear spaces normal linear spaces and T a linear transformation. T is just a linear transformation right now of x into y, then the following conditions are equivalent to one another. Then the following conditions are equivalent to one another. यानी they are essentially same mathematically, उनका मतलब एक ही है। तो पहला क्या है, कौन सी स्टेटमेंट्स? T is continuous is the same as 2, T is continuous at the origin, at the additive identity. Origin का मतलब चूंकि हम वेक्टर स्पेसेस में है तो additive identity, in the sense that, जो हमने अभी कहा, in the sense that if T of xn, if xn converges to 0, then T of xn converges to T of 0. And by the way, जो linear map होता है, T of 0 is always 0. Linear map always sends identity to the identity. Okay, third क्या है जो important है, that there exists a positive real number. There exists a positive real number k such that norm of T of x is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x. Fourth, if S is the set all x belonging to x such that norm x is less than equal to 1, then इसको हम लिखते हैं the closed unit ball इस set को, the closed unit ball in x, ये जो इस set है इसका नाम है, then इसकी जो range है वो bounded है, then its image T of S is a bounded set in Y. यानी पता है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर T linear है, then it is continuous if and only if it is continuous at the origin. अगर ये सिर्फ 0 पे additive identity पे continuous है, तो ये हर जगह continuous होगा. Because ये generally ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक point पे या origin पे या additive identity पे continuous है, तो वो हर जगह continuous है. ये इस वजह से है कि T linear है. अगर T linear है, तो अगर ये एक ही point या origin पे continuous है, तो ये हर जगह continuous है. और दूसरा ये इस बात मतलब then it is मतलब अगर ये true है, तो ये भी it is equivalent to continuity, that norm of T of x is less than equal to some positive norm times norm x for all x belonging to k, या फिर it is equivalent
to say that, मतलब ये इसी के बराबर अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई फंक्शन है जो लीनियर है और उसका जो क्लोज्ड यूनिट बॉल है, सर फिर से आवाज गई। अब आ रही है आवाज? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, चलो हाँ शुक्र है। सर। एक्चुअली ये इंटरनेट कनेक्शन कुछ अनस्टेबल बता रहा है, शायद उस वजह से भी गड़बड़ होती हो। ओके, ये कभी कभी वोल्टेज डाउन जो होती है ना, तो उससे क्या होता है, ये अपना जो इसका है ना, ये सिस्टम वाईफाई का यहाँ पे घर पे, वो कुछ बिगड़ जाता है। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑल दीज जो कंडीशंस हैं, ऑल दीज आर डेफिनेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। इफ अ फंक्शन इज लीनियर तो टी इज कंटिन्यूअस के लिए काफी है कि अगर वो एक ही पॉइंट या ओरिजिन पे कंटिन्यूअस हो, या फिर ये कंडीशन होल्ड करती है। बट जैसे ही हम इनको प्रूव करते जाएंगे, मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। सो लेट मी डू, अगर मुझे प्रूव करना है कि दे आर इक्विवेलेंट, आई हैव टू इंप्लाई दैट 1 implies 2 and 2 implies 1, 2 implies 3 and 3 implies 2, 3 implies 4 and 4 implies 3। मतलब अगर मैं ऐसे करूंगा कि हर एक दूसरे से मिलता है, यानी दे मस्ट बी द सेम। अगर इससे ये निकलता है, इससे ये 1 से 2 मिलता है, हमें 2 से 1 मिलता है, then mathematically 1 and 2 are the same। So let me first show that 1 is equivalent to 2। यानी पहले मुझे देखना है, मतलब मुझे दिखाना है if 1 is true then 2 is also true, and दूसरा मुझे दिखाना है if 2 is true then 1 is also true। So वैसे it's easy। Now suppose t is continuous, यानी मैं दिखा रहा हूं पहले 1 implies 2। Suppose t is continuous, then obviously it is continuous at the origin, है ना? हाँ सर। Then t is continuous at origin। तो ये तो हो गया। Now conversely, मतलब एक्चुअली हमें दूसरा प्रूव करना है। Conversely, suppose t is continuous at origin, and let x belong to x, and xn be a sequence inside x such that xn converges to x। तो अगर मुझे दिखाना है t is continuous at x, I have to show that t of xn converges to t of x, because we are living inside a metric space। तो अगर मुझे दिखाना है t is continuous, then I have to show this। अब अगर xn converge करता है x को, तो इसका मतलब ये है कि xn minus x must converge to 0। ठीक है ना? लेकिन t is continuous at the origin। t is continuous at the origin means if yn converges to 0, then t of yn must converge to t of 0। By our supposition, it means that t of xn minus x must converge to t of 0, that's equal to 0। अब हम यूज करेंगे, देखो ये यहाँ पे linearity यूज होगी। Now since t is linear, it implies that t of xn minus t of x converges to 0, right? हाँ सर। So which would imply, because the vector addition is continuous,
t of xn must converge to t of x. तो मैंने साबित कर दिया. So which implies t is continuous at origin. No, t is continuous at x belonging to x. Since x is arbitrary, इसका मतलब t is continuous everywhere. So t is continuous. तो अभी तक हमने दिखा दिया कि 1 and 2 are equivalent. यानी मैंने दिखा दिया ये दो डेफिनेशन सेम. अब मैं दिखाऊंगा 2 and 3 are equivalent. इसी तरह से 3 and 4 are equivalent. तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये सारी की सारी इक्विवेलेंट हो जाएगी. ओके, चलो अब दिखाएंगे हम नेक्स्ट क्या होना चाहिए. नेक्स्ट एक मिनट. हाँ, अब मुझे दिखाना है 2 is equivalent to 3. 2 क्या है कि t is continuous at the origin. मतलब मुझे दिखाना है t is continuous at origin if and only if norm of t of x is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x for some k positive. तो ये मुझे दिखाना है, ये दोनों बराबर है. Okay, now obviously now 3 does imply 2. Why? Because if norm of t of x is less than equal to k times norm of x for some k positive for all x belonging to x, then if xn is a sequence in x such that xn converges to 0, so from t of xn is less than equal to k times norm of xn, क्योंकि हर एक x के लिए ट्रू है तो xn के लिए भी ट्रू है. अब अगर xn कन्वर्ज करेगा 0 को, this would converge to 0, which would imply that t of xn would also converge to 0, which is the same as t of 0, which implies t is continuous at origin. Now conversely, suppose that t is continuous at origin. तो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है this is true. So we have to show that norm of t of x is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x for some k positive. Assume to the contrary. मान लो ये मतलब हम इसको contradiction से prove करेंगे जो कि मैथमेटिक्स में हम करते हैं. Now assume to the contrary. उसका मतलब क्या है कि suppose ये सच नहीं है. ये सच suppose होने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता such that this is true. ठीक है ना? Then for each n belonging to the set of natural numbers, we can find a vector xn belonging to x such that norm of t of xn is strictly greater than n times norm of xn. यानी इसका उल्टा हो जाएगा. मतलब कोई भी नंबर ऐसा अगर नहीं है तो इसका मतलब हर किसी नंबर के लिए कोई ना कोई xn, कोई ना कोई x मिल जाएगा. इसका मतलब हर किसी नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई xn मिल जाएगा such that this is true. मतलब इसका उल्टा मैंने assume कर लिया. राइट? सो अगर ये सच है तो लेट मी टेक अनदर पेज. यानी मैंने अभी माना मतलब ये सच होना चाहिए. फिर is what greater than n times norm of x. अब मैं क्या करूंगा? Using the properties of the norm, I can write it as should I write it like this, right? हाँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 by n times norm of xn is multiplied by norm of t of xn is
strictly greater than 1 for all n greater than equal to 1. अब using the property of the norm, it's a non-negative scalar, so इसका mod लगाना ना लगाना एक ही बात है. So I can take this inside the यानी इस तरह से. ठीक है ना? Which would imply चूंकि t linear है तो मैं स्केलर को अंदर ले जा सकता हूँ. It implies that t of xn divided by n into norm n, क्योंकि ये numbers हैं, is strictly greater than 1 for all n greater than equal to 1. तो अगर ऐसा है, now let yn be equal to xn by n norm of xn, right? We see that yn converges to 0 as n approaches infinity, because norm of yn किसके बराबर होगा? It would be norm of xn by norm of xn, और नीचे आएगा n. पॉजिटिव्स को हम बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा नॉर्म, यानी इस तरह से, और चूंकि ये कैंसिल होगा, so this is just equal to 1 by n, and this would converge to 0 as n approaches infinity. ठीक है ना? So yn converges to 0. लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं assume ये कर रहा हूं, कहां गया वो, मैं assume कर रहा हूं t is conversely suppose that t is continuous at the origin. So अगर t continuous करेगा, मतलब if it is continuous at origin, it implies that t of yn converges to t of 0 is equal to 0, right? Which would imply that norm of t of yn की जगह आएगा जो ये है xn divided by n norm of yn, यानी ये बहुत छोटा हो जाएगा जब n बहुत लार्ज हो जाएगा. लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना इसको. अगर मैं इसका नाम स्टार लिखूं, क्योंकि ये कह रहा है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 1 हो, n कुछ भी हो. मैं कह रहा हूं जब n लार्ज हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. It's a contradiction. Therefore, we must have norm of tx. We must have some k positive such that norm of t of x is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x. Now we show that 3 is equivalent to 4. 3 is equivalent to 4 मतलब मुझे दिखाना है ये 3 क्या है? 3 है मेरा t of x in norm is less than equal to k times norm of x, right? And 4 है मेरा कि t of s is a bounded set, where s is the closed unit ball. S is all vectors in x such that norm of x is less than equal to 1. यानी मुझे दिखाना ये दोनों बराबर हो. ठीक है? ओके 3 ओके तो मैं ऐसा करूंगा इस तरह से. पहले कौन सा करें? Now suppose 4 करें, नहीं चलो तीसरा ही करते हैं. 3 implies 4 करते हैं, यानी इससे ये मिलेगा. ठीक है ना? Now यानी मुझे दिखाना है this is less than equal to k. मैं assume करूंगा और फिर मैं दिखाऊंगा t of s is bounded. So let's do it. So a set, मुझे क्या दिखाना है, या पहले लिख देता हूं मैं, चलो उससे बेटर है. Suppose norm of t of x is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x for some k positive. Let s be equal to all x belonging to x such that norm x is less than equal to.
Now, if x belongs to S, then norm of t of x is less than equal to some k into norm of x, which is less than equal to k, क्योंकि norm of x is less than equal to 1 if x belongs to S, which implies that t of x is less than equal to k for all x belonging to S, which implies that t of S जो है is a bounded set in the range in Y, because T is a map from X to Y. Now suppose that T of S is bounded set in Y. What does it imply? It implies that norm of T of X is less than equal to some K positive for all X belonging to S, right? और S क्या है? S is all vectors belonging to x such that norm x is less than equal to 1, है ना? मुझे क्या दिखाना है? I have to show that t of x is less than equal to k, है ना? For some k positive. ठीक है? Now if x is equal to 0, then 3 is trivially true. देखो अगर x 0 है ना तो ये 3 जो है ये ट्रू है क्योंकि t of x भी 0 है, ये भी 0. Norm of t of 0 is 0, so left hand side is 0, right hand side is 0, दोनों बराबर. So let x be not equal to 0 belong to x, and consider अब अगर ये 0 नहीं है तो इसका norm 0 नहीं होगा. Consider y equal to x by norm x, then norm of y जो होगा it would be norm of x by norm x. नॉन नेगेटिव नंबर बाहर आएगा नॉर्म से तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये 1 है. implies that y belongs to S, है ना? क्योंकि S में ऐसे सभी वेक्टर्स है जिनका नॉर्म या तो 1 है या 1 से कम है. अब अगर y का नॉर्म 1 है तो वो यहाँ बिलोंग करेगा. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर y S में है तो बाय आवर assumption t of that vector जिसका नॉर्म 1 या 1 से कम है उसका नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू k है फॉर सम k पॉजिटिव. तो implies that t of y in norm is less than equal to k for some k positive, क्योंकि ये bounded हम मान चुके हैं. This implies that norm of t of x by norm x is less than equal to k for some k positive, which would imply that चूंकि t linear है तो ये यहाँ आ जाएगा, स्केलर बाहर, और चूंकि ये नॉन नेगेटिव है तो ये बाहर आके राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं. Now this is true for all 0 not equal to x belonging to x. और 0 के लिए तो ट्रिवियली ट्रू है, वो तो मैंने कहा ही था. और अगर 0 नहीं है तो उसके लिए भी ये ट्रू है. थर्ड इक्वेशन. Hence t of x is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x. तो इससे हमें मिला 3 is equivalent to 4. यानी हमने दिखाया ऐसे, पहले हमने ये दिखाया 2 is equivalent to 3, अब हमने लास्ट पे दिखाया this is equivalent to 4, और ये सारी डेफिनेशंस एक जैसी है. ठीक है? अगर मुझे दिखाना है लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर मैं इनमें से कोई भी कंडीशन साबित करूं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट टी इज कंटिन्यूअस. मेरे कहने का मतलब है अगर टी लीनियर है एंड टी इज अ मैपिंग बिटवीन टू नॉर्मल लीनियर स्पेसेस, देन टी इज कंटिन्यूअस is equivalent to any of the condition that t is continuous at the origin. और इन कंडीशंस में जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे वो ये वाली होगी, द थर्ड कंडीशन. यानी हमारे लिए कंटिन्यूटी के लिए जो हम क्राइटेरिया यूज करेंगे वो होगा दिस, क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंट एंड दिस इज सिंपलर टू, ये वाला. यानी मेरे कहने का मतलब है जब मैं कहूंगा टी इज कंटिन्यूअस तो मेरा फोकस होगा इस पे.
यानी t is Bounded. continuous का मतलब ये कि t of x No. is less than equal to k times norm of x for all No. x belonging to x. So this अगर कोई t लीनियर है और साथ में ये प्रॉपर्टी है प्लस दिस प्रॉपर्टी, t is a continuous linear transformation. ठीक है ना? और इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब अगर मैं कहूं तो इसका मतलब अगर कोई लीनियर मैप है, अगर उसकी x बाउंडेड है तो tx भी बाउंडेड है, क्योंकि अगर नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू समथिंग, t ऑफ x जो है उसका नॉर्म ऑटोमेटिकली लेस देन सम पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। यानी अगर डोमेन बाउंडेड है इंप्लाइज रेंज इज बाउंडेड, मतलब इससे यही हमें मिलता है। और इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को, कभी कभी का अब हम यही कहेंगे, हम इनको कहते हैं बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। बाउंडेड का मतलब कंटिन्यूअस, बाउंडेड का मतलब बाउंडेड नहीं है जैसे साइन एक्स बाउंडेड है ना, वैसा नहीं है जैसे साइन एक्स बाउंडेड है, बिकॉज वहां पे ये नहीं है कि साइन ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 इनटू सम एक्स, वहां है सीधा ही, वहां एक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ एक्स के साथ कनेक्शन है। जब मैं कहूंगा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये वाली कंडीशन। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड बाय दैट आई मीन t इज लीनियर, एंड ये मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा, t of x in norm is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x. ये क्लियर हो गया? जी सर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t is a bounded स्लैश कंटिन्यूअस, क्योंकि मतलब उनका एक ही है, linear transformation of x into y, ठीक है, और t2 भी है, चलो मैं t1 t2 लेता हूं दो। हाउ अबाउट t1 t2? t1 plus t2 क्या हो? By t1 plus t2 I mean a function defined like this, pointwise addition, and you have to remember that t हो या t1 हो जो भी है, it's a mapping from x to y. It implies that t1 जो है, t1 of x जो है ये y में belong करता है। तो जब मैं कह रहा हूं norm of t of x, ये y का norm है ना, और जब मैं कह रहा हूं x norm of x, तो ये x का norm है, यानी ये दो डिफरेंट नॉर्म्स हैं, बट दे आर अंडरस्टूड, क्योंकि हमें पता है t of x y में है, तो इसमें जो नॉर्म लगेगा वो कोडोमेन का लगेगा और x पे डोमेन का लगेगा। Now I want to see अगर ये दोनों बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, how about this t1 plus t2 into x, so this would be less than equal to, चलो पहले मैं लिखता हूँ इसको, by our definition t1x plus t2x, but that would be less than equal to by triangle inequality of the norm, क्योंकि ये नॉर्म है y पे, और चूंकि ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, so there would be some k positive, let me call it k1, and this would be less than equal to some k2 times norm of x, because it's a मतलब जो हमने अभी प्रूव किया, so then I can write it as k1 plus k2 into norm of x. So let's call this k. So I have shown that t1, अब अगर ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इनका सम भी कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। So I have shown that t1 t2 into x is less than equal to 1 plus k2 some k times norm x, है ना, some positive number times here. तो इसका मतलब अगर t1 t2 बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और हमें ये भी पता है सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इज अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, इसीलिए हमने ये कंडीशन चूज की, क्योंकि इसको प्रूव करना कि सम मतलब ये इजी हो जाता है टू प्रूव दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सिंपली अगर मैं इसी तरह से लूं अल्फा टी, तो अल्फा टी भी कंटिन्यूअस आएगा बाय द सेम रीजन, क्योंकि अल्फा टी ऑफ एक्स जो है, जो ना अभी हमने
तो आराम से कर सकते हैं. दिस इज जस्ट मॉडुलस ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ dx. तो दिस वुड बी लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम्स k into norm of x. अब k का this would be a positive number. Oh, of course, modulus. So modulus of alpha is a positive number, k is a positive number, so this is a positive number. So I have found that alpha t of x is less than equal to some positive times norm of x for all x belonging to x. कहने का मतलब ये कि अगर मैं लूं अब इसको मैं डिनोट करूं bxy को all mappings from x to y such that t is linear and norm of tx is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x for some positive k. अगर मैं ये सेट लेता हूं जो कि मैंने कल कहा था, इट मीन्स ऑल लीनियर, जैसा कि हमने अभी कहा, एक्चुअली इट्स लीनियर एंड कंटिन्यूअस मैप्स. इट इज contained in home xy, all linear mappings from x to y. What we have proved just is that अगर t1 t2 इसमें बिलोंग करें तो t1 plus t2 भी इसी में बिलोंग करेगा और alpha into t1 भी इसी में बिलोंग करेगा. What does that mean? That means bxy is a subspace of home xy. All linear transformations from x to y इसकी एक subspace है, यानी ये खुद एक vector space है. Every subspace is a vector space itself. तो अगर मैं अब लूं all collections of linear mappings, all collection of linear mappings ये है, वो तो है ही vector space, लेकिन अगर मैं लूं all collections of bounded linear mappings, by that I mean linear transformations that are continuous also, वो भी एक subspace बनाता है, एक vector space बनाता है. So bxy is a linear space over k. हाँ, पहले मुझे यहाँ लिखना चाहिए why if x and y are normal linear spaces, over k, then collection of bounded linear mappings is also a linear space over k. अब हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? देखो मैं कह रहा हूं अगर x and y नॉर्मल लीनियर स्पेसेस हैं तो bxy एक लीनियर स्पेस है. सवाल क्या तो होना ये भी चाहिए? नॉन हाँ हाँ पूछो. ये भी bxy नॉर्मल हाँ लीनियर स्पेस. हाँ, क्या ये नॉर्मल लीनियर स्पेस बन सकती है? लीनियर स्पेस तो हमने देखा, और अगर बन सकती है तो इसका नॉर्म हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? जैसे हमने लिया था ना अभी, x नॉर्मल लीनियर स्पेस थी, फिर हमने एक क्लोज्ड स्पेस ली, सब स्पेस ली y की, फिर हमने कहा क्या हम इसको नॉर्मल लीनियर स्पेस बना सकते हैं? हमने कहा हाँ, हम इसका कोसेट का नॉर्म डिफाइन करेंगे, इन्फिमम ओवर y बिलोंग्स टू y, नॉर्म ऑफ x प्लस y. तो ये क्वेश्चन है क्या हम इसको नॉर्मल लीनियर स्पेस बना सकते हैं? द आंसर इज यस, और वो हम करेंगे इस तरह से. उसके लिए हम लेंगे अपना क्लोज्ड यूनिट बॉल. मैंने अभी लिया था ना सेट S, it was x belonging to x such that norm x is less than equal to 1. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ओके, इसको कुछ कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं b sub x, ये भी इसके लिए कुछ बुक्स की नोटेशन है. नाउ सपोज t belongs to pxy, उसका मतलब क्या हुआ? therefore there exists a k positive such that norm of t of x is less than Yes. equal to k times norm of x for all x belonging to x. ठीक है, अब अगर ये ट्रू है तो अगर मैं लूंगा ये सेट, ठीक है, नाउ सपोज x belongs to s और bx, अब जो भी तुम्हें पसंद हो, वैसे हम यही यूज करेंगे.
नोटेशन, तो उसका मतलब क्या है? देन यू वुड हैव t of x is less than equal to k, क्योंकि it is less than equal to k times norm of x। और अगर x s में है, because अगर x s में है, then norm of x is less than equal to 1, तो then t of x is less than equal to k। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब ये हुआ, अगर मैं लूं ये नंबर्स t of x such that x belongs to s, अगर मैं ये सेट लूं, is a bounded set, bounded set in y। अगर बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये सॉरी मुझे लिखना चाहिए, norm of this thing is a bounded set in set of real numbers। तो अगर बाउंडेड सेट है तो इसका सुप्रीमम होगा। इट implies that this set जो है नॉन नेगेटिव नंबर्स का, जो कि बाउंडेड है व्हेन आई सेट x इक्वल x बिलोंग टू s, is has a supremum। और अगर सुप्रीमम है तो मैं डिफाइन करूंगा नॉर्म ऑफ t, यानी अब मैं नॉर्म कर रहा हूं डिफाइन on the elements of dxy, the functions from x to y that are linear and continuous। I define it to be supremum of all these tx's, of all these numbers where x belongs to the closed unit ball। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, supremum over norm x is less than equal to 1 norm of t of x। ठीक है? तो कहने का मतलब bxy जो था, it is collection of all bounded linear maps, then for each t belonging to this is well defined। the question is it norm, है ना? ये तो मैंने डिफाइन कर दिया, जो इससे पहले हम नॉर्म डिफाइन करते थे, अभी मैंने इसके लिए नॉर्म डिफाइन किया, जो कि पता है पहले तो एग्जिस्ट करता है ये सुप्रीमम over norm x less than equal to 1 norm of t of x। norm of t of x is well defined because t of x belongs to y and y is a norm of linear space, उस पे ऑलरेडी एक नॉर्म डिफाइंड है, तो दिस इज वेल डिफाइंड। अब मैं इनका सुप्रीमम डिक्लेयर करता हूं, ये इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म है। अभी मुझे लगता है कुछ मिनट बचे हैं। ओके, तो नॉर्म की प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए, बट दे आर इजी टू प्रूव। पहले तो ये, चूंकि ये सारे के सारे नंबर्स नॉन नेगेटिव है, तो ये नॉर्म ऑफ टी नॉन नेगेटिव है। आई थिंक हम ये स्टॉप करते हैं क्योंकि लेस देन 1 मिनट है, और हम वापस आते हैं दूसरा, ज्वाइन करो फिर से। ठीक है, मैं इसको एंड करता हूँ। 23 स्टूडेंट्स, ठीक है।